ملتانیوں کو پارکنگ مثال سے چھٹکارا نہ مل سکا۔ کچہری چوک پر پارکنگ مافیا کے سامنے انتظامیہ بے بس، کمشنر اور ڈیپٹی کمشنر اپنے دفاتر کے باہر موجود غیر قانونی سٹینڈز ختم نہ کرا سکے۔ ٹریفک کی روانی متاثر شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ دیکھتے ہیں عباس کی اس رپورٹ میں۔ یہ مناظر ہیں کچہری چوک ملتان کے، جہاں سرکاری دفاتر کے باہر غیر قانونی پارکنگ شہریوں کے لیے درد سر بن گئی۔ شہر کی مین کچہری چوک پر پارکنگ سٹینڈز کے باعث کشادہ شاہراہیں سکڑ گئیں۔ پارکنگ کے مسائل ضرور ہیں، لیٹیکینٹس بھی آتے ہیں، لیٹیکینٹس کی گاڑیاں بھی کھڑی ہوتی ہیں، وکلا کی بھی ہوتی ہیں۔ اب اس کے لیے ہمارا جوڈیشل ٹاور جو ہے وہ پیچھے وہ ہمیں جو ہے 23 کنال سے زائد جگہ جو ہے وہ ملی ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے، تو وہاں پر ایک جوڈیشل ٹاور بن رہا ہے، پلازا بن رہا ہے اور اس میں پارکنگ پلازا بھی ہے۔ وکلا کا کہنا تھا کہ نیو جوڈیشل کمپلیکس بننے سے ہی پارکنگ کے انتظامات بہتر ہوں گے۔ گاڑیاں اس پارکنگ سے چوری ہو رہی ہیں، بار ایسوسی ایشن کی انتظامیہ نوٹس لے۔ امر مجبوری یہاں گاڑیاں کھڑی کرنی پڑتی ہیں، عوام کو تکلیف ضرور ہوتی رہی ہے، لیکن اب اللہ کا کرم ہو گیا ہے کہ یہ جو سامنے آپ کو اسٹیٹ بینک نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے پلازا بن رہا ہے جو تقریباً 11 منازل پہ مشتمل ہے، اور اس میں تقریباً 2-4 مہینے کے اندر یہ ٹوٹل جو پارکنگ ہے اس کا ایشو حل ہو جائے گا۔ سرکاری دفاتر کے باہر غیر قانونی سٹینڈز انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ عباس، روہی نیوز، ملتان۔ بات کریں گے جرائم کی دنیا سے۔ بیوی کو کلہاڑیوں کے وار سے قتل کرنے والا سفاک شوہر اپنے انجام کو پہنچا۔ عدالت نے گرفتار ملزم ظفر اقبال کو جرم ثابت ہونے پر عمر قید کی سزا سنا دی۔ عدالت کا ملزم کو 50,000 روپے جرمانے کی سزا کا حکم ہے۔ ملزم کو مقتول کے ورثاء کو 5 لاکھ روپے قانونی معاوضہ کے طور پر ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ جرمانے کی عدم ادائیگی پر ملزم کو 6 ماہ مزید سزا بھگتنا ہوگی۔ ملزم نے تھانہ قادر پورہ کے علاقے میں بیوی کو کلہاڑی اور ٹوکے کے وار سے قتل کیا تھا۔ پاسپورٹ سے متعلق شہریوں کے لیے اچھی خبر۔ پاسپورٹ ڈیلیوری کا دورانیہ دوبارہ سے کم کر دیا گیا۔ نارمل درخواست والا پاسپورٹ 10 روز میں ملے گا، ارجنٹ پاسپورٹ 4 روز اور فاسٹ ٹریک پاسپورٹ 2 دنوں میں ملے گا۔ اس سے قبل نارمل پاسپورٹ 14 روز میں ملتا تھا، ارجنٹ 7 روز میں اور فاسٹ ٹریک والا 4 روز میں ملتا تھا۔ پاسپورٹ امیگریشن ڈائریکٹوریٹ نے نئی ہدایت جاری کر دی ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کی ہدایت پر سیکریٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید کا نشتر 2 کا دورہ۔ اسپیشل سیکریٹری ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارمرز واجد علی شاہ، سیکریٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ جنوبی پنجاب افضل ناصر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ دورے کے دوران نشتر 2 کو بروقت مکمل کرنے بارے اجلاس بھی منعقد کیا گیا۔ وسیم شہزاد رپورٹ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نشتر 2 کی جلد تکمیل کے لیے کوشاں۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر سیکریٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے نشتر 2 کا دورہ کیا۔ اسپیشل سیکریٹری ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارمز واجد علی شاہ، سیکریٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ جنوبی پنجاب افضل ناصر اور کمشنر ملتان انجینئر عامر خٹک بھی ان کے ہمراہ تھے۔ سیکریٹری نے نشتر 2 ہسپتال میں مختلف بلاکس کا وزٹ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر COIDAP نے 31 مئی تک OPD فعال کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ہم اس منصوبے کو نہ ہی یہ کہ جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچائیں، بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم اس کی کوالٹی کو بھی انشور کریں اور ایک پیشنٹس کنوینئنس بھی ہو۔ تو جس طرح آپ نے ذکر کیا، وزیر اعلیٰ صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے ہمیں یہ ضرور ٹارگٹ دیا کہ 31 مئی تک ایٹ لیسٹ ہم اس کے OPD کے آغاز کا بندوبست کریں۔ ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ روبینہ کوثر، ایڈیشنل کمشنر ارشد گوپانگ، MS نشتر راؤ امجد، پرنسپل میڈیکل کالج راشد قمر، ADCF&P محمد سمیع، AC صدر عامر افتخار، ڈاکٹر مسعود حراج، ڈاکٹر فرحان، COIDAP دانش افضل، چیف پلاننگ آفیسر عبدالحق بھٹی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کا کہنا تھا کہ نشتر 2 کی SNE کی منظوری بھی دی جا چکی ہے۔ نشتر 2 کی تکمیل سے نشتر 1 پر مریضوں کے اضافی بوجھ میں کمی آئے گی۔ 2 ماہ میں انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس 2 فلورز آ جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارا پلان یہ ہے کہ OPD کے بعد ایمرجنسی کا آغاز کیا جائے۔ ایمرجنسی کے ساتھ ساتھ ہی ہماری تمام جو ریڈیولوجی سروسز ہیں، جس میں CT اسکین ہے، MRI اور یہ باقی ساری سروسز انشاءاللہ تعالی سٹارٹ ہو جائیں گی۔ نشتر 2 ہسپتال 9 ارب 32 کروڑ روپے کی خطیر رقم سے تیار کیا جا رہا ہے۔ کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔ میاں والی میں محکمہ جنگلات کی شاندار کارکردگی۔ ضلع میں شجرکاری ہدف مکمل کر لیا گیا۔ ضلع بھر میں 5 لاکھ پودے لگائے گئے ہیں۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں اختر مجاز۔
मियांवाली में महकमा जंगलात ने शजरकारी का हदफ मुकम्मल कर लिया। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर आगा हुसैन शाह कहते हैं 50,000 पौधे महकमा तालीम के इदारों में लगाए गए, 15,000 पौधे महकमा हेल्थ के इदारों में लग चुके हैं। प्राइवेट मकामात को मिलाकर 5 लाख पौधे जिला में लगाए गए हैं। इस साल मौसम बहार में 50,000 पौधे हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट को मुहैया किए हैं। न सिर्फ मुहैया किए हैं बल्कि उनकी हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं ताकि उनकी सर्वाइवल जो है, उनकी जो कामयाबी है उसको यकीनी बनाया जा सके। इस तरह 15,000 पौधे महकमा हेल्थ को हम दे चुके हैं और वो मुख्तलिफ जगहों पर इस वक्त लगाए जा चुके हैं और बड़े कामयाब हैं। इस प्राइवेट लोगों को भी हम पौधे 10 बिलियन सुनामी के तहत दे रहे हैं और महकमा डिफेंस को भी दे रहे हैं और टोटल 5.5 लाख पौधे हम इस वक्त मौसम बहार में लगा चुके हैं मुख्तलिफ इदारों के ज़रिए। आगा हुसैन शाह का कहना था कि मियांवाली में बारिशें ज्यादा होने की वजह से गर्मी में शिद्दत नहीं आई। जमींदार और शहरी इन दिनों भी शजरकारी कर सकते हैं। इस वक्त तो जो मौसम है वो ज़्यादा गर्म नहीं है और बारिशें भी आए दिन हो रही हैं, तो ये बिल्कुल इस मौसम में पौधे लगाए जा सकते हैं। और मेरी यही दरख्वास्त होगी आपके तवज्जो से कि तमाम ज़मींदार भाई और जितने इदारे भी हैं इसको शजरकारी को जारी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर का मजीद कहना था कि पौधों की देखभाल भी महकमा जंगलात कर रहा है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। कोटद्दू बार एसोसिएशन के 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हलफ बर्दारी का इनेकाद। तकरीब न्यू जुडिशनल कम्प्लेक्स में सजाई गई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुलाम अब्बास ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और ओहदेदारान से हलफ भी लिया। तकरीब का अहवाल जानते हैं शफकत मौलाना की इस रिपोर्ट में। कोटद्दू बार एसोसिएशन के 9 मुंतखब ओहदेदारान ने हलफ उठा लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुलाम अब्बास ने उनसे हलफ लिया। मेंबरान पंजाब बार कौंसिल, सदर और जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के वकला ने तकरीब में शिरकत की। सदर बार चौक सरवर शहीद ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को अपने मसाइल से आगाह किया। तकरीब के आखिर में वकला ने जजेस को गिफ्ट पेश किए, दुआ कराई गई। बाद में मेहमानों के लिए ज़ोहराने का एहतमाम भी किया गया। इंशाअल्लाह ताला मैं बतौर प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार यहाँ की जो डिफ़िकल्टीज़ और यहाँ की जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको जाना है, सुना है। इसके लिए हम इसको हाई कोर्ट लेवल पे भी टेकअप करेंगे और हम इसको गवर्नमेंट लेवल पे भी टेकअप करेंगे। और ये नौज़ायदा डिस्ट्रिक्ट है और नौज़ायदा तहसील है चौक सरवर शहीद। इसके लिए ये हमारे नौजवान दोस्त, हमारे सीनियर, इनको यहाँ पे अपनी पेशा वराना जिम्मेदारी की वजह आवरी में जो रुकावटें हैं वो दूर करने के लिए भरपूर कोशिश। हम प्रॉपर फोरम तक उनकी जो भी मारूज़ात है इंशाअल्लाह ताला वो पेश करेंगे और इसकी बार की बेहतरी के लिए इंशाल्लाह एक मुश्तरका मिल के चलने का हमने उनके साथ अज़म का इज़हार किया है। तो कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ताला और चौक सरवर शहीद बार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बेहतरी के लिए भी इंशाल्लाह ताला ऑनरेबल चीफ साहब और रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट तक हम इंशाल्लाह ताला ये मारूज़ात पहुंचा देंगे। रिजवी साहब बहुत अच्छे प्रेसिडेंट साबित होंगे। आज इनका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेंबर पंजाब बार कौंसिल इजाज़ गुरमानी साहब को, इनकी पूरी एग्जीक्यूटिव को, बाकी तमाम दोस्तों को, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात मुझे इजाज़त देगी। मैं वकला के फलाह बहबूद के लिए और काले कोट के तकद्दस के लिए भरपूर काम करूँगा। 4 साल बाद न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स में बार ओहदेदारान की तकरीब हलफ बर्दारी सजाई गई। सदर हसनैन रिजवान जूनियर वकला के मसाइल, वकला कॉलोनी और दीगर मसाइल को हल करने आइंदा भी बार इलेक्शन में हिस्सा लेकर जीतने के लिए पुरअज़म थे। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ शफकत मौलाना, रोही, कोटद्दू। और अब आपको बताएंगे खुशाब में कमिश्नर की सदारत नंबरदार कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन नंबरदारी निज़ाम की फाली और गंदम का टारगेट पूरा करने के लिए सजाया गया। नंबरदार कन्वेंशन का हवाल जानने के लिए देखते हैं जुल्करनैन हैदर की रिपोर्ट। दौरे कदीम का नंबरदारी निज़ाम दौरे जदीद के कंप्यूटराइज सिस्टम पर भारी साबित। ज़राई पैदावार में इजाफे और दीगर सरकारी अमूर निपटाने में नंबरदार का कलीदी किरदार है। आज का जो नंबरदार कन्वेंशन है उसका बुनियादी मकसद नंबरदार के इदारे को मजबूत करना है, जो कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हुआ है। यहाँ पर नंबरदार साहबान से बात करने का मकसद ये था कि जो हुकूमत पंजाब की वीट कैंपेन जारी है, गंदम की ख़रीदारी की कैंपेन, उसमें इनको मजबूत किया जाए और इनके को इस्तेमाल करके अपना टारगेट अचीव किया जाए। नंबरदार और किसान मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अगर किसान खुशहाल होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। कन्वेंशन में जिला भर से नंबरदारों ने अपने मसाइल कमिश्नर को बताए, जिन्हें हल करने की यकीन दहानी कराई गई। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर नंबरदारी और नंबरदारी सिस्टम के थ्रू और हमारे जो यूसी सेक्रेटरीज हैं वो अपना कलीदी किरदार अदा करें
गांव और देहातों की सफाई के ऊपर। जब तक ये आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे वहाँ उस वक्त तक गांव की सफाई नहीं हो सकेगी। डिप्टी कमिश्नर जीशान राणा समेत तमाम जिले इदारों के सरबराहान ने कमिश्नर सरगोदा को तफसीली ब्रीफिंग दी। गंदम की खरीदारी, पानी की फ्राहमी, कपास की पैदावार, जंगलात की शजरकारी और गाँव में सफाई सुथराई पर अफसरान ने रिपोर्ट पेश की। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बड़ा क्लियर विजन है कि हमने जो कपास की फसल है उसको इस इलाके में दोबारा से इंट्रोड्यूस कराना है और इससे काश्तकारों को करोड़ों का डॉलरों का फ़ायदा होगा। इससे हुकूमत का जो 300 बिलियन डॉलर है वो इनकम आएगी। तो खुशाब में जो कि हमने जो गवर्नमेंट की तरफ से टारगेट मिला है 3000 एकड़ रकबे का, इंशाल्लाह ताला हम इसको इस साल 3000 करेंगे और आने वाले सालों में इससे कहीं ज़्यादा इस रकबे को बढ़ाएंगे। इससे यकीनी तौर पर काश्तकार वो जिनके पास पानी के मसाइल हैं, जिनकी ज़मीन बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, तो वो लोग भी कपास की काश्त करके अपनी फी एकड़ इनकम में इजाफा कर सकते हैं। यूनियन कौंसल सतह पर नंबरदारी निज़ाम की फ़ालियत हुकूमत पंजाब का अहम इक़दाम है। इससे न सिर्फ कस्बों देहातों के मसाइल हल होंगे बल्कि रेवेन्यू इकट्ठा करने का हदफ भी आसानी पूरा किया जा सकेगा। कैमरा टीम के हमरा जुल्करनैन हैदर, रोही, खुशाब। अब बात करेंगे मौसमी असरात की। मुजफ्फरगढ़ शहर और गर्दोनवाह में सुबह से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। बारिश से गंदम की खड़ी फसल को शदीद नुकसान का खदशा। गंदम की कटाई करने वाले किसानों को मुश्किलात का सामना। किसानों का कहना था कि 2 रोज से जारी बारिशों की वजह से मुश्किलात का सामना है। गंदम की पैदावार मुतासिर हो सकती है। तफसीलात जानते हैं आमिर डोगर की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदोनवाह में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से जहां मौसम खुशगवार हुआ वहीं किसानों के चेहरे मुरझा गए। किसानों का कहना था कि इस साल बारिशों की वजह से गंदम को काफी नुकसान हुआ है। रात भर होने वाली बारिश के बाद हवा में नमी का तनासब 70% रिकॉर्ड किया गया। शहर के नवाही इलाकों में बारिश के बाइस गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा और किसान परेशान दिखाई दिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले 2 रोज में मजीद बारिशों का इम्कान है। बारिशां दी वजह तो ये नुकसान थी सकते कि पैदावार जेह्ड़े पुस के दाने सारे विकदे नहीं टाइम ते साको दुश्वारी का सामना है। असा बार बाहरों गोदाम में नहीं चाह के वहीं सकते साको दुश्वारी का सामना है। इतना सा पैसे लागत लाई खड़े साको वो पैसे पूरे नहीं मिलते, लिहाजा जट जेड़ा खिसारे विच आ। किसानों का कहना था कि इस साल गंदम की खरीदारी का सिलसिला भी सुस्त रवी का शिकार है। महकमा ज़राअत मुजफ्फरगढ़ ने खदशा जाहिर किया है कि अगर बारिश मुसलसल होती है तो गंदम की फसल को नुकसान पहुँच सकता है। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। और अब खबर शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया से। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।